Okay, good morning, friends. Good morning, sir. I welcome you all to CA Intermediate Group 2 Financial Management. Let me introduce myself in brief. So all of you are aware of. Few faces are new. Okay. Right. People call me CA Rakesh Agrawal. I cleared my graduation in 1989, that is BCom, from University of Pune with All India, with gold medal in cost and management accounting from University of Pune. Right. In 1990, I cleared my ICWA. I stood third in the Pune chapter of cost accountants, that is local body. In 1992 exam, I cleared my CA final with All India merit. And actually, in between, since 1991, I started teaching. After becoming ICWA, I got the opportunity to teach at Pune chapter of cost accountants itself. So my teaching career started from 1991. Till date it is going on without any interruption. So I think you must have been born after 1991. Yes. Right. So the career started in 1991 and onwards. Right. Right. Now, I take care of, though I used to own an academy earlier and used to teach lot many subjects, but nowadays I concentrate only on two subjects, costing and FM. Now this is in brief about me. If you want to know more, right, my brief details are printed behind the index page, those who are not aware of me. So in your notes, behind the index page you will find about me, plus there is a detailed index inside. Detailed index will contain the details lying inside. So in case you want to search a particular topic in the notes, that a particular topic lies where, aging schedule of debtors, where it lies. समझा कुछ भी नहीं है, right? Aging schedule of debtors. So if you want to notice it, instead of turning all the pages, just go through the detailed index and you will find the page number where the topic lies. Is that okay? So I'll just introduce you to the subject. This was my introduction. Now your subject of FM. Okay, most of you are aware what institute has done. This financial management is for 60 marks. In the original proposed syllabus, this was for 100 marks and it should have been for 100 marks. The subject is very vast. But later on, institute thought that you people are so intelligent and just teaching you for 60 marks won't be 100 marks, this one subject is not enough. So they introduced economics for finance also. Economics for finance. Most of you are aware of this. I need not tell. This is for 40 marks. Please remember, I am going to take care of your financial management. There is another faculty, expert faculty, doctorate in economics, who is going to take care of your economics portion. So we thought of putting an expert for economics instead of me taking care. So I will take care of financial management. Economics faculty will take care of the subject in the same time, same duration. Right. So I'll introduce you to this subject of FM. A brief index is already been printed here on the front page, those who are carrying the copies. Right. First we'll go to the scope and objectives of FM. That is just getting introduced with the subject FM. Another topic is ratio analysis. Right. It has got two names, but popularly it is called ratio analysis. Then you will find another topic is leverages. Can you pronounce it? Leverages, right? All new words, huh? The next is, check, cost of capital. Cost of capital. Then capital structure. Dividend decision. Next must be capital budgeting, just check. Working capital and then capital budgeting. Okay.
working capital management, then capital budgeting. If you want to make a list, there is no need actually, it is lying in the on the front page. Then this capital budgeting under risk and uncertainty, right? And then I think sources of finance, lease financing is there, yeah. This is new introduction, lease financing. And then sources of finance. This is what your syllabus is of FM for 60 marks, should have been for 100 marks. Now let's not talk about it, syllabus is already been finalized. Now what is in our hand is to do justice with this. So this much you have to take care of for 60 marks. Now I will connect all these topics with our business. Please remember, this financial management deals with business and finance. This entire FM deals with business and finance. That is money. And I think money management is important, and that is what majority you are going to learn. So you are going to learn about business and finance more in financial management. Now let's imagine a situation that you want to start a new company. It means you want to start a new business. Let's assume that you want to set up a sugar factory. Sweet example. You want to set up a sugar factory, right? And that too in the form of a limited company. So what type of thinking you will have to do when you start a new business? What ways you will start thinking? So I'll list down what we are going to think. If you want, you can also make that list, that what a businessman has to think about. And then with business, I will connect all these topics. Okay. So let's see. First of all, whenever you want to start a new business, you have to first understand which business, right? Which business to start. ये तो मैंने आपको बोल दिया कि sugar factory, but you'll have to think about. You may say we will set up a coaching institution, no problem. You may think of setting up a hospital, no problem. You may want to own an airline company, no problem. You want to manufacture cement, it's your choice. So which business finally, right? Which business to start? This is a question one has to decide, which business to start. Then, how much is the required investment? How much is the required investment in business? Don't you think this is also important? Right? Which business you want to start and how much money will be required to invest. Like before doing CA, you should understand how much money and time you need to invest in doing CA. Naturally, one has to. So for any business, how much is the total investment required to start that business? So you have to think about it. Number 3, from where I will get the money? Suppose the required investment is 300 crores. Do you have 300 crores in your pocket? No. So from where this money will come? Right? So you'll have to think about it. First, how much is the investment, and then from where that money will come? Required money. This much. This investment will come from where? Then, what is the composition of investment? That is debt and equity. Friends, I am assuming two things for FM. Let me be very clear on day one. I assume that you know the basics of accounts, financial accounts, and basics of costing. I will need these two things for teaching FM. It means you can understand profit and loss account, balance sheet, and you can understand cost sheet. On this we are going to study FM. FM will require the inputs from accounts and costing in various chapters. In all these chapters we will need the basic inputs from accounts and costing. Actually it is said that the inputs provided by FM and by accounts and costing will take you to the FM. Means output of accounts and costing will become input for FM. So therefore I need this much. Anyway, I hope you know this word
from accounts. Debt in equity. Debt means borrowing, not debtors. Debt means borrowing. Equity means own money. So once you decide that 300 crores is required, how much will come out of your pocket and how much you will borrow? What is the composition of that investment? So when you decide from where the money will come in, you have to also decide the composition, that in that money what is the composition of debt, that is borrowing, and what is the composition of own funds, that is shareholders funds. We are not talking about a small proprietorship business or partnership business. We are talking about a corporate entity, a big company, always, right? Because a small proprietor may not go into all these details, right, in so much of the details. So we are talking about a corporate entity. So how much will come from equity and how much will come from debt? One has to think about. What is the cost of bringing this money? What is the cost of bringing this money? ये जो पैसा आप ला रहे हो इसका कुछ कॉस्ट लगता है. आप जिससे पैसा लाएंगे उसको वापस कुछ देंगे क्या नहीं उसके बदले में? फॉर यूजिंग दैट मनी. आपने पैसा बोरो किया तो उसके बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. और इक्विटी शेयरहोल्डर से पैसा लाए तो उनको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, राइट? दैट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी. इज दिस कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट मनी? द मनी विच यू हैव ब्रॉट यू हैव टू रीपे इन सम फॉर्म. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मनी. What is the risk involved in doing business? We always say business is risky, isn't it? As compared to service, business is always risky. CA बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक जॉब ज्वाइन करना कहीं और दूसरा खुद की प्रैक्टिस चालू करना. आप ही सोचो इसमें कहाँ रिस्क ज़्यादा है. प्रैक्टिस चालू करने के बाद आपको लगता है पहले दिन क्लाइंट आने चालू हो जाएंगे, ने आपने बोर्ड लगा दिया और लाइन लग जाएगी लोगों की, भाई हमारा काम कर दो, हमारा ऑडिट कर दो. इतना आसान लगता है आपको? नहीं लगता, राइट? तो वो कभी भी रिस्की है और खर्चे तो चालू हो जाएंगे. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम स्टाफ, टेलीफोन, ये सब खर्चे तो लगने चालू हो जाएंगे. और बिजनेस होगा क्या नहीं, गारंटी नहीं है. यानी बिजनेस में क्या है? रिस्क है. जॉब पे रहे तो पहले महीने की सैलरी इमीडिएटली मिल जाएगी, बराबर है? तो बिजनेस करने में रिस्क तो है, वो रिस्क कितनी है? वी कैन मेजर दैट रिस्क. रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस कैन बी मेजर्ड, राइट? इफ माय बिजनेस इज इन प्रॉफिट, then how much profit should I share with my shareholders? समझो हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को क्या देते आप? डिविडेंड देते. इतना तो पता है आपको, डिविडेंड वर्ड, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, ये चाहिए. हाँ, नहीं तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा फिर. तो शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड आप देना चाहेंगे उसका भी डिसीजन लेना पड़ता है, राइट? Then if I don't have enough money, then should I borrow or take an asset, fixed asset basically, which are very costly, on rent, that is lease? मीनिंग फिक्स्ड असेट्स के लिए कोई एक मशीनरी है जिसकी कीमत 20 करोड़ है, मेरे पास नहीं है 20 करोड़. मेरे पास दो चॉइस है, एक तो मैं बोरो कर सकता हूँ या वो मशीन किराए पे भी ले सकता हूँ. एग्जाम्पल के लिए, रहने के लिए घर नहीं है तो दो चॉइस है और पैसे भी नहीं है. घर खरीदने लायक पैसे मेरे जेब में नहीं है और घर तो चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. यदि मेरे जेब में पैसे नहीं है तो मैं लोन ले लूँ और घर खरीद लूँ, बोरो मनी एंड बाय. दूसरा, घर किराए पे भी तो मिलता है, रेंट पे. शायद वही बात कर रहा हूँ. फिक्स्ड असेट्स के लिए 20 करोड़ नहीं है तो या तो बोरो करके परचेस कर लो या किराए पे ले लो. किराए पे लेने को क्या बोलते हैं? लीज. लीज पे लेना यानी किराए पे लेना.
Then how to manage my day to day फाइनेंस. डे टू डे फाइनेंस, बिजनेस को रोज चलाने के लिए जो पैसा लगता है, डे टू डे फाइनेंस. वैसे उसका नाम क्या है जो बिजनेस रोज रोज चलाने के लिए जो पैसा लगता है? वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल. दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, रोज जो काम करते हैं आप, कैश मैनेजमेंट, राइट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा. ये रोज रोज जो बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको डे टू डे वर्किंग के लिए, वो. हाउ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस. जैसे आप आपका परफॉर्मेंस बीच बीच में मेजर करेंगे, राइट. कैसे कर सकते हैं? होमवर्क सॉल्व करके, टेस्ट से. क्या जज करेंगे कि भाई आप जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है या नहीं. ये जज करने के लिए तरीका क्या है? यू हैव टू पुट योरसेल्फ टू टेस्ट, इजंट इट, टू अंडरस्टैंड. दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है? व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ, राइट. दूसरे वर्ड में बोलना हो तो व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई कंपनी. मेरी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ये आपको चेक करना है, या बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे है वो चेक कर रहे हैं. ये सब काम करने पड़ेंगे क्या नहीं, आप सोच लो. ये जितनी चीजें मैंने लिखी ये सब करनी पड़ेंगी क्या नहीं. और एक लिख देता हूं. हाउ टू टेक बिजनेस डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. दोस्तों मैंने पूरा एफएम लिख दिया है यहाँ. आज आपको लिखना हो तो लिख लेना, बोल रहा था मैं, जिनको लिखना हो तो. और अभी यदि लिख रहे होंगे तो एक काम और करना, आपके नोटबुक में क्वेश्चन के आगे थोड़ी जगह छोड़ना, थोड़ी जगह छोड़ना. जैसे आप जर्नल एंट्रीज बनाते थे ना, तो राइट साइड में डेबिट और क्रेडिट की जगह छोड़ते थे, तो एक कॉलम छोड़ देना. क्यों? अभी लिख रहे होंगे तो मैं एक एक एक्सप्लेन करते जाऊंगा फिर से. उसके साथ कनेक्टेड एक टॉपिक लिखना है. आई रिपीट, बिजनेसमैन को इतने सारे क्वेश्चन के आंसर सोचने हैं और ये आंसर एक एक टॉपिक में है, तो आपने उससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा है वो राइट साइड में जगह हो तो लिख लेना, तो जगह छोड़ देना थोड़ी सी, राइट. तो 2/3 पेज आपका सिंगल पेज का, राइट. समझो आपका ये पेज है नोटबुक का, तो इतनी जगह पे क्वेश्चन और 1/3 पेज स्ट्रिप छोड़ दो फॉर कनेक्टिंग द टॉपिक. चलो डिस्कस भी करते जाता हूँ, डिक्टेट भी कर देता हूँ, तो साथ में हो जाएगा काम. एक अलग से नोटबुक बनाएंगे ना एफएम के लिए, कभी सोच रहे रफ पेपर वगैरह, नोटबुक बनाएंगे तो उस पर इंडेक्स पेज पे एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए, इंडेक्स बना के उसके सामने पेज नंबर लिखते आना. और नोटबुक को पेज नंबर दे देना, आज सीरियल नंबर, नोटबुक को पेज नंबर दे देना सब, सेल पेज नंबर्स, ठीक है. ओके. तो आपको सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखना हो, बिजनेस एंड फाइनेंस. पहला क्वेश्चन, विच बिजनेस टू स्टार्ट. राइट में थोड़ी जगह रखना है. विच बिजनेस टू स्टार्ट, एक ही लिखो, दूसरा मैं बोलता हूं, एक एक करके लिखेंगे. अब विच बिजनेस टू स्टार्ट, ये आपको डिसीजन लेना है. और एक क्वेश्चन ये वाला भी लिख लो, हाउ मच इज द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. दो लिखो, दो का आंसर एक ही है, विच बिजनेस टू स्टार्ट, और सेकंड हाउ मच इज द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. यू आर कीपिंग सम स्पेस इन द राइट साइड. दो लिख दिए, वेट फॉर सम टाइम, बाकी बाद में लिखेंगे. विच बिजनेस टू स्टार्ट, ये डिसीजन हुआ. जैसे शुगर फैक्ट्री डालना है, सीमेंट फैक्ट्री डालना है, एयरलाइन कंपनी चालू करना है, जो भी करना है, और उस बिजनेस में पैसा कितना लगेगा, इसका जजमेंट. ये दो चीज आपको इस टॉपिक में मिलेगी. तो आगे टॉपिक का नाम लिख लो दोनों के लिए कंबाइन. कौन सा? कैपिटल बजटिंग. ये दो क्वेश्चन का आंसर इधर है, कैपिटल बजटिंग.
ये नाम का थोड़ा मतलब, आज आपको पूरे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, पूरे सिलेबस से ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन विल गो इनटू डिटेल्स नेचुरली वन बाय वन, ये सब टॉपिक कवर करना है हमको। बजटिंग, कॉस्टिंग में आपने वर्ड पढ़ा, बजटिंग इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मेकिंग अ फ्यूचर प्लान। व्हेन यू मेक अ फ्यूचर प्लान फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लगाते ना, अकाउंट्स में आप पढ़े कैपिटल इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट द बिजनेस, उसका प्लानिंग है। सो यू आर प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन अ बिजनेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक नया वेंचर चालू करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नई फैक्ट्री शुरू करना है, तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि पैसे कितने लगेंगे, तो कितना पैसा लगेगा और वो कौन से बिजनेस में लगेगा, और उस पे से बाद में जज करना है कि वो बिजनेस हम स्टार्ट करें या न करें, ये डिसीजन भी लेना है, इज इट डिसीजन मेकिंग। यानी कैपिटल बजटिंग में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि वो बिजनेस हम स्टार्ट करें या नहीं। आप उसमें कंक्लूजन लिखेंगे कि दो ऑप्शन है हमारे पास, बिजनेस ए और बी, तो आपको कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे डिसीजन लेंगे कि बिजनेस ए इज बेटर देन बी, या बी इज बेटर देन ए, या बोथ आर नॉट गुड। यानी यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, शुड आई स्टार्ट दैट बिजनेस और नॉट, यानी बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा या नहीं, ये पहले सोचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचेंगे या बाद में सोचेंगे, ये शायद पहले सोचेंगे, इसलिए बजटिंग है। यू हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर कि मैं जो बिजनेस सोच रहा हूँ इसमें कितना पैसा लगेगा और उसमें कितने रिटर्न्स आएंगे, और उसको जज करना है, उसको मैथमेटिकल टेक्निक से स्टडी करके अपने ये डिसीजन तक पहुंचना है कि वो बिजनेस में स्टार्ट करूं या न करूं। इस चीज का आंसर इस टॉपिक में, तो कनेक्टेड टॉपिक लिख दिया, कैपिटल बजटिंग। अब लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मनी। नंबर 3, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मनी। नेचुरली वो आपको इधर से मिल जाएगा, वेरी गुड, लिख दो ये टॉपिक, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नाम के अंदर ही मीनिंग है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पैसे लाने के कितने सोर्स हैं? ढेर सारे हैं, ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ढेर सारे इंडियन यानी डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड्स। आप पैसा इंडिया से भी ला सकते हैं, रेज कर सकते हैं, और अब्रॉड से भी कर सकते हैं। वो सब तरीके आपको पढ़ने को मिलेंगे कि कितने तरीके से पैसा लाया जा सकता है बिजनेस में, दैट इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन लिखो नंबर 4, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? What is the composition of investment? That is debt and equity. लिखा? What is the composition of investment? That is debt and equity. Anybody can guess इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कहाँ मिलेगा? Just guess work. Capital? Very good. आप तो रेडी हो गए FM के लिए एकदम पहले दिन से। मैं फिर बाद में समझाता हूँ, ये लिख लेना कहाँ गया वो, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द टॉपिक, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा टाइम खर्चा करेंगे इसमें, जिसे 300 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, उसको इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, कैपिटल लगने वाला है 300 करोड़ टू स्टार्ट अ शुगर फैक्ट्री, एग्जांपल के लिए। हाँ, तो 300 करोड़ में पूरे इक्विटी शेयर से लाऊं, या पूरे 300 करोड़ में लोन लूं या डिबेंचर होल्डर से लूं, या 150 करोड़ इक्विटी से मांगू, 150 करोड़ डिबेंचर होल्डर से मांगू, या उसमें से 100 करोड़ इक्विटी से लूं, 100 करोड़ डिबेंचर वालों से लूं, 100 करोड़ का बैंक लोन लूं। ये सोचना है आपको, 300 करोड़ लगेंगे तो समझ में आ गया, बहुत सारे रास्ते पता चल गए, बहुत सारे रास्ते सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन किस रास्ते से कितना, 300 करोड़ में से कितना इक्विटी से, कितना प्रेफरेंस शेयर्स से, कितना डिबेंचर से, कितना बैंक लोन, ये जो कॉम्पोजिशन, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोजिशन। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो कहाँ कहाँ से आया और कितना आना चाहिए, क्या बेस्ट है, तो उसका बेस्ट कॉम्पोजिशन डिजाइन किया जा सकता है। यू कैन डिजाइन द बेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ दैट मनी। पूरा इक्विटी से लाए, ये एक रास्ता है, पूरा डिबेंचर से लाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या?
पूरा पैसा बोरो किया, जेब का कुछ नहीं लगाया, तो थेराटिकली ठीक है, थेराटिकली 100% बोरोइंग इज ओके। प्रैक्टिकली जब तक आप आपके जेब का पैसा नहीं डालते, लोग आपको लोन नहीं देते, तो आपको कुछ तो अपने जेब का पैसा डालना पड़ेगा, कुछ लोन लेना पड़ेगा। लेकिन इसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, राइट, और उसका क्या रिजल्ट होता है, वो कॉम्पोजिशन से क्या फर्क पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। यानी वही कैपिटल जो पैसा लाए, उस कैपिटल का स्ट्रक्चर यानी उसका कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरिंग और कॉम्पोजिशन का मतलब एक ही है। कैपिटल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना यानी डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन डिसाइड करना, भाई 50-50 होना, 80-20 होना, 60-40 होना, ये प्रोपोर्शन डिसाइड करना यानी कॉम्पोजिशन डिसाइड करना, और उसका डिसीजन हमको इस टॉपिक में लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस मनी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस मनी? वेरी गुड, कौन सा? होशियार लोग, आप कोरिलेट कर ले रहे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस मनी? तो टॉपिक लिख दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले आपने ये सोचते जाना है कि ये क्वेश्चन बिजनेसमैन के दिमाग में आएंगे या नहीं, और आएंगे तो उसका आंसर कहाँ मिलेगा। इनडायरेक्टली हम पूरा बिजनेस पढ़ रहे हैं, पूरा बिजनेस और फाइनेंस इस टॉपिक में पढ़ना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक स्टेप आगे जाके बोलूँगा मैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या कोई भी डिग्री वाले, मुझे लगता है ये नॉलेज सबको चाहिए। अरे भाई डॉक्टर भी है तो उसको एक हॉस्पिटल डालना है, तो हॉस्पिटल कौन से एरिया में डालना है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, उससे रिटर्न कितना आएगा, वो हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कैसा है, ये सब सोचना शायद डॉक्टर को भी पड़ेगा, इंजीनियर को भी पड़ेगा। और इसीलिए आजकल सभी सिलेबस में थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना चालू कर दिया है। सभी लोगों को थोड़ा सा पढ़ाते हैं कि भाई फाइनली आप कोई भी प्रोफेशन में रहे या कोई भी बिजनेस में रहे, यू हैव टू डील विथ मनी मैटर्स। एवरीवन हैज टू डील विथ मनी मैटर्स। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो मनी मैटर से डील नहीं कर रहा है? और मनी मैटर्स आया यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, तो इसलिए ये सबको पढ़ाया जा रहा है। सो दिस सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए फाइनेंस मैनेजर के हाथ में सबका कंट्रोल रहता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस मैनेजर रहता है ना, उसके हाथ में फाइनेंस का कंट्रोल रहा। फाइनेंस का कंट्रोल यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल, बराबर। ब्लड सप्लाई आपके हाथ में, मनी सप्लाई आपके हाथ में। Therefore, फाइनेंस मैनेजर assumes a very significant position in the organization। तो सबको उससे काम पढ़ने वाला है। फाइनेंस मैनेजर को इंजीनियर से शायद काम नहीं पड़े, लेकिन इंजीनियर को फाइनेंस मैनेजर से काम पड़ सकता है। सो दैट इज अ की पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एनीवे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने लिख दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द मनी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डूइंग बिजनेस? What is the risk involved in doing business? Any guess? लिखना मत, हाँ? Guess कौन सा? ये वाला? इसलिए बोला लिखना मत, क्यों गलत गेस है। वो रिस्क वर्ड इधर और इधर मैच हो गया ना, इधर उधर रिस्क वर्ड मैच हो गया, लेकिन उसको टॉपिक लिखना लीवरेजेस। टॉपिक का नाम लिखना है लीवरेजेस। ब्रीफ में बताता हूं, लीवरेज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क। उस टॉपिक में भी बोलूंगा मैं डिटेल में। लीवरेज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क। एक एग्जांपल के लिए, आपको टेम्परेचर मेजर करना है बॉडी का, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। वैसे बिजनेस में रिस्क कितनी है, इसको मेजर करने का जो थर्मामीटर है उसका नाम लीवरेज है। सो लीवरेज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क इन द बिजनेस। अभी इतना काफी है, बाकी डिटेल में पढ़ना ही है उसमें वो टॉपिक। चलो फिर अगला लेते हैं, कौन सा ये 7th नंबर लिखो। इफ माई बिजनेस इज इन प्रॉफिट, इफ माई बिजनेस इज इन प्रॉफिट, then how much profit should I share with my shareholders? Good. Then how much profit should I share with my shareholders? मुझे तो ऐसा लग रहा है वैसे एफएम पढ़ाने की जरूरत नहीं थी आपको, आप फालतू ही डोनेशन देने आए मुझे। गुड। एक्चुअली वो टॉपिक फैमिलियर लगे, यही तो टीचर की कलाकारी रहेगी और सब्जेक्ट की कलाकारी रहेगी। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगी इसमें,
मैं डराना काम मेरा नहीं है, पढ़ाना काम है मेरा, लेकिन अकाउंट्स और कॉस्टिंग से एक स्टेप ऊपर जाएंगे आप। बेस में जैसे एक के ऊपर एक आपने 3 चीज़ें रखी हो, घर पे कोई चीज़ जमाई है एक के ऊपर एक, तो पहले अकाउंट्स है बेस पे, उसके ऊपर कॉस्टिंग है, ये एक बार सेट कर लेना, हिल तो नहीं रहा है, उसके ऊपर एफएम है। इससे आज समझ लो आपको क्या समझना है। अब किसी का ये बेस हिल रहा है नीचे, तो ये ऊपर वाला तो टपकने वाला है। तो अकाउंट्स, फिर कॉस्टिंग और फिर एफएम, ऐसे वो एक के ऊपर एक है, ध्यान रखना। एनीवे, इन क्या लिखा आपने, इन माई बिजनेस, इफ माई बिजनेस इज इन प्रॉफिट देन हाउ मच प्रॉफिट शुड आई शेयर विथ माई शेयर होल्डर्स। आपके ध्यान में आएगा कौन सा था, डिविडेंड डिसीजन लिख दो, डिविडेंड डिसीजन। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है, डिविडेंड डिसीजन। ये आज आप लिख रहे हैं, ये कभी भी रिवाइज किया तो पूरा एफएम क्यों पढ़ा, एफएम के हर टॉपिक का ब्रीफ में पर्पस क्या था वो आपके समझ में आएगा। व्हाई यू आर स्टडिंग ऑल दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस टॉपिक इन रियल लाइफ, तो वो कनेक्ट कर रहा हूं मैं बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या सोचने वाली बात है, जो प्रॉफिट हुआ सब बांट दो ना शेयर होल्डर्स में। ऐसा नहीं होता है, वो बांटना भी एक डिसीजन है, यानी उसको 100% बांट देना ये भी एक डिसीजन है। प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड नहीं देना ये भी एक डिसीजन है। पहली बात तो आपको सरप्राइज होगा, प्रॉफिट होने के बाद भी मैंने डिविडेंड नहीं दिया शेयर होल्डर्स को। ऐसा पॉसिबल है क्या? शेयर होल्डर मारेंगे नहीं? मेरे अगेंस्ट लीगल सूट फाइल नहीं करेंगे? इन्हें अपने लॉ पढ़ा शायद, राइट। डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में तो डिविडेंड देना है, ये कंपल्शन नहीं है, वो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सोचते होंगे कि मैं कितना प्रॉफिट बांट दूं और कितना रख लूं। जो रख लूं उसको बोलते हैं हम रिटेंशन। भाई 100 रुपया कमाया, उसमें से आपको कितना दूं और कंपनी के पास कितना रहने दूं। जो कंपनी के पास है वो भी आपका ही पैसा है, लेकिन मैं कंपनी के पास रख रहा हूं और कुछ आपको बांट रहा हूं। तो ये कैसे डिसीजन लेने का कि कितना बांटना और कितना रखना, उसमें भी कुछ चीजें इन्वॉल्व, उसमें कुछ थिंकिंग इन्वॉल्व है, वो आपको यहां पढ़ना है कि उसमें क्या क्या सोचते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। चलो नेक्स्ट, नंबर 8। वो तो समझ, इस वर्ड से ही समझ में आ गया। चलो, इफ आई डोंट हैव इनफ मनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डोंट हैव इनफ मनी देन शुड आई बोरो, should I borrow or take an asset on rent? Then should I borrow or take an asset on rent? Rent यानी that is lease, that is lease। उसका sophisticated word है, मकान किराए पे लेना, ऐसा हम बोलते हैं हिंदी में, और उसको फाइनेंशियल वर्ड में बोलते हैं I have taken the house on lease। इंग्लिश और हिंदी में देखो कितना फर्क पड़ गया। मैंने मकान किराए पे लिया, I have taken a house on lease, मतलब exactly same, थोड़ा sophisticated लगता है। I have taken a house on lease, मतलब वही वो असेट आपने, मशीनरी आपने लीज पे ली यानी किराए पे ली, या खरीदना है और पैसे नहीं है, लोन ले लो और खरीद लो, बात एक ही है। मुझे कार में घूमना है, पैसे हैं नहीं कार खरीदने लायक, अब तो भाई काम कर, बैंक से लोन ले ले, कार लोन ले ले और खरीद ले, या वो टैक्सी ले ले भाई, किराए पे ले लेना है, तो कार में घूमना है ना तो टैक्सी भी लेके तो जा सकता है ना। बस वही बात कर रहे हैं। तो उस टॉपिक को आपने क्या लिख दिया है, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग में पढ़ना है। एक क्वेश्चन का आंसर आप अभी दे देंगे। आप लीज फाइनेंसिंग लिख दिया, मुझे कार सिर्फ 4 दिन के लिए चाहिए बस, क्या करूं? रेंट पे ही लेना ठीक रहेगा ना। यू हैव आंसर्ड वन क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक। इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए तो किराए पे लो ना भाई, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों अटक रहे आप, पैसे अटका क्यों रहे, राइट। तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए तो लीज अच्छा ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस में भी लीज कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है वो हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। लीज फाइनेंसिंग में फाइनेंशियल कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो आपको पता ही है लिखने के पहले, लेकिन लिख दो, हाउ टू मैनेज माई डे टू डे फाइनेंस। हाउ टू मैनेज माई डे टू डे फाइनेंस, वेरी गुड। दैट इज ये सब मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री यानी स्टॉक पता है आपको, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेली क्रेडिटर्स। मैंने कॉस्टिंग में आपको हिंट दी थी, कैश बजट आपको एफएम में मिलेंगे, वो इधर पढ़ना है आपको, कैश मैनेजमेंट एफएम में, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। टॉपिक आपको पता ही है,
कहाँ गया वो, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लिख दो सबके सामने। डे टू डे बिजनेस मैनेज करना, रोजमर्रा का काम, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसमें फर्क देखो, चलो वो लिख दिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, सब वर्किंग कैपिटल के पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक का नाम लिखा। आपके पेरेंट्स को जैसे डिसीजन लेना पड़ता है, पेरेंट्स की बात इसलिए करो अभी आपको जिम्मेदारी आनी बाकी है। समझो आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा हो, यदि खुद का हो या किराए का होगा, तो यदि खुद का होगा तो उन्होंने कभी तो डिसीजन लिया होगा कि घर कहाँ खरीदना है, कितने वाला खरीदना है। कार परचेस की होगी, 2 व्हीलर परचेस की होगी तो डिसीजन लेना है, एक रेफ्रिजरेटर, एक टेलीविजन है, ये वन टाइम वाले डिसीजन है, राइट, कभी कभी लेने वाले डिसीजन। ये जो वन टाइम के डिसीजन है उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और वो सब होने के बाद आपका घर है, आपकी कार है, सब कुछ है, लेकिन अब वो घर चलाना है। रोज हमको खाने के लिए पैसे लगते हैं, कार के लिए पेट्रोल लगता है, राइट, घर का मेंटेनेंस लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, राइट, मेड सर्वेंट से उनकी सैलरी पे करना है। ये जो दिन भर का मैनेजमेंट है, रोज का मैनेजमेंट, भाई आपने ट्यूशन ज्वाइन की तो आपको ट्यूशन फीस के पैसे देना है, ये जो डे टू डे मैनेजमेंट है इसके लिए भी पैसा लगता है, वो मैनेजमेंट इसमें है, क्या में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी डे टू डे मैनेजमेंट। तो बिजनेस में डे टू डे के लिए भी पैसा लगता है और एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट टॉपिक हम यहाँ डील करते हैं कैपिटल बजटिंग में। कहाँ चला गया ये वाला। और डे टू डे बिजनेस का फाइनेंस मैनेजमेंट देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ऐसे ये दो काम है, एक वन टाइम और एक डे टू डे। सिर्फ एक बार खरीद के छोड़ दिया ऐसा नहीं होता ना, कार खरीद के पटक दिया आपने, डिसीजन हो गया, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस आप देखते नहीं, तो क्या फायदा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो भाई असेट परचेस करना ये एक डिसीजन हो गया, और असेट को मेंटेन करना, उससे काम करवा लेना और उस पर बाकी जो रिकरिंग खर्चा लगेगा वो करना, वो ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऐसा हर बिजनेस में करना है। भाई एकेडमी ने प्रीमाइसेस खरीद लिया, क्लासरूम, लेकिन इसको मेंटेनेंस भी लगता है, भाई इसका खर्चा लगता है, तो वो डे टू डे मैनेजमेंट में जाता है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में गया। अब चलते हैं नंबर 10, हाउ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस। अरे वाह, वेरी गुड, आपको पढ़ाने में मजा आएगा। फिर आपका कॉमन सेंस जिंदा है। हाउ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस। कभी कोई गायब रहा तो बहुत मुश्किल हो जाती है टीचर को पढ़ाने में। हाउ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस, उसी का दूसरा मतलब व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई बिजनेस और ऑफ माई कंपनी। व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई कंपनी। चलो, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। इससे कौन सा टॉपिक कनेक्ट होगा? वेरी गुड, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, एक्चुअली हम मेनली उसी से स्टार्ट करने वाले, रेशियो एनालिसिस। ये तो मैं इस पे हूँ, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम पर ही हूँ। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसका स्कोप डिस्कस कर रहे हैं एफएम का, और क्या ऑब्जेक्टिव्स है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक पे तो ऑलरेडी हूँ मैं। रेशियो एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बनाने वाला हूँ। क्या बोला? फाइनेंशियल डॉक्टर, राइट। हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहता है वो डॉक्टर हमारी हेल्थ स्टेथोस्कोप लेके, राइट, थर्मामीटर लेके, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट लेके चेक करता है, और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास नहीं रहे तो पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी से टेस्टिंग करवा के बुलवा लेता है, ब्लड सैंपल वगैरह, बराबर। उससे क्या जज करता है वो? हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। ऐसे ही फाइनेंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, ये जज करना मैं आपको सिखाऊंगा इस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। रेशियोज यानी वो टूल्स है, जैसे स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर गिनने वाली मशीन, ये टूल्स है, राइट। वो एक्सरे मशीन, वो क्या है? टूल है। वैसे ही रेशियोज एक टूल है, वो मैं आपको बताऊंगा टूल कैसे यूज करना, फाइनेंशियल रेशियोज। और उस रेशियोज से फाइनेंशियल हेल्थ कैसे स्टडी करना बिजनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, गड़बड़ है तो कहाँ है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है दुख पैर रहा है लेकिन प्रॉब्लम पैर का नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन का है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कहीं कंट्रोल जा रहा होगा, वहाँ से कोई नर्व का ब्लड सप्लाई रुक गया होगा तो प्रॉब्लम इधर है, ऐसा होता है। और इसमें बहुत सारे लोग मिसजज कर लेते हैं, पैर दुख रहा है ना प्रॉब्लम इधर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो अच्छा डॉक्टर वही कहलाता है हु कैन डू अ करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। उसका डायग्नोसिस करेक्ट होगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है तो करेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये डेटा आपको दिया है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने रख दिया। बाकी लोग भी देखते हैं, हाँ ठीक है टी फॉर्म में है, ये है वो, ये नहीं देखना है। वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से आपको क्या स्टडी करना है, इसको स्टेथोस्कोप लगाने का। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, कुछ बोल गया मैं, ये आपको जज करना है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ठीक है और लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, कहाँ से बोला आपने। तो हम वो रेशियोज पढ़ेंगे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब क्या, लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या, किस चीज़ से क्या हेल्थ जज करना, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू आर गोइंग टू बिकम फाइनेंशियल डॉक्टर। और ये टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा और आपने आगे स्टडी किया तो यू कैन बिकम पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप म्यूचुअल फंड मैनेजर बन गए, पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए, आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं करो, किस बेसिस पे। आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जज करके ही कर रहे हैं ना कि भाई ये कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक है और ये कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, ये डिसीजन कहाँ से लिया। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेशियो एनालिसिस। और फिर और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके अलग चैप्टर है, लेकिन वो सीए फाइनल के एफएम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके और इसके आगे, लेकिन ये बेस है उसके लिए। पहले आपको फाइनेंशियल हेल्थ जज करते आनी चाहिए, फिर और आगे की बात है। और ये लिख दो, हाउ टू टेक बिजनेस डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब आपको मैचिंग मिल गया होगा, हाउ टू टेक बिजनेस डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसको इससे जोड़ दो, कहाँ गया वो, ये सीबीए ने कैपिटल बजटिंग शॉर्ट में लिखा मैंने, कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। लिख दिया, इससे ही कनेक्टेड है वो, इसलिए इसके बाद ही पढ़ेंगे। हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, हर बिजनेस में, लेकिन हर बिजनेस में अलग अलग इन्वॉल्व है, रिस्क और अनसर्टेनिटी अलग अलग है। जैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन चालू किया तो इसकी रिस्क अलग है, और ऑयल एक्सप्लोरेशन चालू किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, उसकी रिस्क अलग है। तो हर बिजनेस में रिस्क अलग अलग है, और वो रिस्क को स्टडी करके आपको वो इन्वेस्ट करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, रियल लाइफ में एक चीज है जो आप और मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो क्या चीज रहती है, जैसे आपने सीए करने का डिसीजन लिया कि वी वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें रिस्क है या नहीं? रिस्क तो है। आप आपका टाइम और आपके पेरेंट्स के पैसे, मनी, ये दो इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ अ रिस्क। फ्यूचर आउटकम क्या होगा, नोबडी नोज। So you are investing your time and money in a project of becoming CA. The outcome is not certain. वैसे ही business में you invest money, the outcome is not certain. So there is an uncertainty involved in business, and different amount of uncertainty is involved in different business. जैसे BCom करने में रिस्क कम है या नहीं के बराबर है, सीए करने में रिस्क ज्यादा है, एमबीए करने में रिस्क अलग है। यानी तीनों में रिस्क अलग अलग हो सकती है, बीकॉम की रिस्क अलग, एमबीए करने की अलग हो, सीए करने की अलग। वैसे ही अलग अलग बिजनेस की रिस्क अलग अलग, और वो रिस्क को स्टडी करके ये डिसीजन लेना है। कैपिटल बजटिंग कौन सा डिसीजन है, ये वाला, शुड आई स्टार्ट द बिजनेस एंड इफ यस हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और ये डिसीजन अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी लेने के लिए कुछ और टेक्निक्स है, तो ये टॉपिक इसको सपोर्ट करता है। बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी रहे तो क्या क्या सोचना चाहिए। सो कैपिटल बजटिंग ही टॉपिक है बट विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब आपको एक चीज और भी बता दूं कि ओल्ड सिलेबस एफएम और न्यू सिलेबस एफएम में कहाँ चेंज हुआ। तो 3 चैप्टर आपके ऐड हुए, और वो है ये एक, यानी जो एडिशन है ओल्ड टू न्यू सिलेबस, वो दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। ये सीए फाइनल में थे, वो यहाँ आ गए। बाकी टॉपिक पहले भी थे एफएम में, वो अभी भी हैं, ये काम में आ सकता है। समझो किसी ने ओल्ड सिलेबस में एफएम किया हुआ है ऑलरेडी और उसको न्यू में कन्वर्ट होना है, तो क्या करना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। बाकी सब तो पहले भी थे, ओल्ड सिलेबस में भी थे।
ये 3 चैप्टर सीए फाइनल के एफएम में थे, वो शिफ्ट होके इधर आ गए, उधर और कुछ नया आ गया, और 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स। ठीक, ये आपको स्कोप पता चल गया। अब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइक जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गेट एस्टैब्लिश्ड इन योर लाइफ, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, आई एम हियर, सो आई एम रिमूविंग दिस नाउ। Now, out of so many decisions which a finance manager has to take, there are 3 key decisions. 3 key decisions or most important decisions. Decisions सभी लेना है, but there are 3 most important decisions. And there I will connect it to objectives of FM. पहले समझ लो फिर लिख लेना. Objectives of financial management. फाइनेंसिंग डिसीजन, अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड, फर्स्ट आई विल राइट इट डाउन कंप्लीटली, देन आई विल गिव यू द सिग्नल टू राइट। अभी आप लिखने जाएंगे तो बीच में अटक जाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा बाद में लिखता हूं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं, और यदि हाँ तो पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। क्यों, पैसा कहाँ से लाना, पहले पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, कितना करना, और करना या नहीं करना, राइट? यही जो क्वेश्चन, विच बिजनेस टू स्टार्ट, हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, राइट? वो, और वो होने के बाद फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इसको अकाउंट से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये फाइनेंसिंग डिसीजन है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पैसा कहां से आता है, तो लायबिलिटी साइड में जनरली क्या रहता है, एक ओन फंड्स, कंपनी की बैलेंस शीट, ओन फंड्स यानी इक्विटी, और बोरोड फंड्स को हम बोलते हैं डेट। तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है आपकी, दैट इज डेट एंड इक्विटी। इसका डिसीजन लेना, इस डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये जो पैसा आप यहां से लाते डेट और इक्विटी से, ये जाता कहाँ है, ये आने के बाद ये पैसा जो लाया है वो गया कहाँ, इन्वेस्ट कहाँ हुआ, तो ये बैलेंस शीट असेट साइड ना, तो बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड में इट इज बेसिकली फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स, बराबर। पैसा बेसिकली कहाँ जाएगा, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट। तो आता है लायबिलिटी साइड से, इन्वेस्ट होता है बैलेंस शीट असेट साइड में, बराबर। तो यहाँ हम अकाउंट से कनेक्ट होंगे, ये लायबिलिटी साइड है, ये आपकी असेट साइड है। अब ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया असेट्स में, करंट और फिक्स्ड असेट्स में, इसके ऊपर आप कुछ कमाएंगे, यू विल जनरेट द रिटर्न, राइट। पहली बात तो ये कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना, करंट असेट में कितना इन्वेस्ट करना, फिक्स्ड असेट में कितना इन्वेस्ट करना, इस डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसमें से करंट असेट की इन्वेस्टमेंट जाके किससे कनेक्ट होने वाली है, वर्किंग कैपिटल से कनेक्ट हो जाएगी, और फिक्स्ड असेट की इन्वेस्टमेंट जाके कनेक्ट हो जाएगी कैपिटल बजटिंग से, वो 2 टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगी। लिख देता हूं लगे तो इधर, ये कनेक्ट होगी टॉपिक कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी ऐसे भी कनेक्ट करके दे रहा हूँ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का, कोई भी इन्वेस्टमेंट में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे आप आपका टाइम और पैसा इधर खर्चा कर रहे हो सीए बनने में, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम लगा रहे हैं आज, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे रिटर्न आने चाहिए, बराबर है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी खर्चा करता है तो उससे क्या रिटर्न आएगा वो एक्सपेक्ट करता है, और इसको फाइनेंशियल वर्ल्ड में गिनने का एक तरीका है जो आप सभी को पता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो एनालिसिस में का एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको ऑलरेडी पता है। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये चीज पढ़ चुके हो, ये सब रेशियो एनालिसिस में फिर से पढ़ना है। तो
इस टॉपिक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ROI, शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दीज असेट्स विच यू हैव मेड। आपने असेट में जो पैसा लगाया उस पर रिटर्न या प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, वो इस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव है। अब इस डिसीजन पे चलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे यहां से आए, इससे दो टॉपिक कनेक्ट होते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको ध्यान में आ जाएगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, दो चैप्टर इससे कनेक्ट होंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कितना डेट और कितना इक्विटी, इसका प्रोपोर्शन डिसाइड करना बोला था ना, कंपोजिशन, डेट और इक्विटी का कंपोजिशन या प्रोपोर्शन 50-50, 20-80, 60-40 जो भी डिसाइड करना, वो कौन सा टॉपिक है? कैपिटल स्ट्रक्चर। और फिर वो हर पैसे को लाने की कॉस्ट, पैसे लगते हैं उसको, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसका ये डिसीजन को ही फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। पैसे कहां से कितने लाना और उसको कॉस्ट कितनी लगेगी, ये डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इस पूरे विंग का फाइनेंसिंग डिसीजन का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ WACC। अभी कुछ नया लिख दिया मैंने, ये तो शॉर्ट फॉर्म समझा, मिनिमाइजेशन ऑफ, ये नया है आपके लिए, WACC। अभी सस्पेंस में रखा है मैंने, गेस वर्क, ऐसी जस्ट गेस वर्क। जैसे आपकी SMS लैंग्वेज एग्जामिनर को समझ में नहीं आती ना, वैसी ICAI की SMS लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। WACC इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान देना, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द मनी थ्रू डेट, बोरो करने की कॉस्ट कितनी, और कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी, ये हमको पढ़ना है। कौन से टॉपिक में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट से पैसा लाने का कॉस्ट कितना, इक्विटी से लाने का कॉस्ट कितना, और आप कुछ पैसा इधर से और कुछ इधर से लेंगे तो दोनों का क्या करना है? एवरेज। लेकिन सिंपल एवरेज नहीं ना, वेटेड एवरेज, क्योंकि प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है दोनों का। तो आपको क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आप लॉजिकली सोच के देखो दोस्तों, जो कॉस्ट लगती है वो शायद मिनिमम होनी चाहिए और मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने जहां पैसा लगाया वहां से रिटर्न मैक्सिमम आना चाहिए, और वो जो मैं कमा रहा हूं उस पे जो खर्चा लग रहा है, जहां से वो पैसा लाया, उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस है, सो कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज एंड प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज। तो इस विंग का ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ WACC, इस विंग का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ ROI। इसको एक एक टॉपिक से और कनेक्ट करता हूं। ये पैसा डेट से ज्यादा लाए, यानी बोरो ज्यादा किया, आपको जो पैसे चाहिए थे टोटल, उसमें से बोरोइंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता रिस्क ज्यादा ले ली मैंने? डोंट यू थिंक बोरोइंग इज टेकिंग अ रिस्क? व्हाई? आपने बोरो किया तो एक तो रीपे करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में चले ना चले, और आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चले ना चले। तो जो लोग बोरो कर लेते, जैसे मैंने घर ले लिया, पैसे नहीं थे बोरो कर लिया, कार नहीं थी खरीदनी थी बोरो कर लिया, मैं बोरो करते चला गया, शायद मैंने बर्डन बढ़ा लिया। और यदि मेरी सैलरी नहीं है या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं वो रीपे कब करूंगा और कैसे करूंगा? ये प्रॉब्लम तो आएगा ना। सो आई एम टेकिंग मोर बर्डन, और ये मेरे खुद के पैसे से किया हुआ काम है, तो मुझे किसी को मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे किसी को देना नहीं है पैसा, लौटाना नहीं है, तो मुझे कोई मांगने आने वाला नहीं है, तो मेरी रिस्क कम रहेगी। मेरा बिजनेस नहीं भी चला तो बोलूंगा ठीक है ना, मुझे किसका देना है, पैसा मेरा है। इसका मतलब आप इक्विटी से पैसे बिजनेस चलाएंगे, फुल इक्विटी 100% इक्विटी से, तो रिस्क ऑलमोस्ट नहीं है या कम है, और डेट से चलाएंगे तो रिस्क ज़्यादा है। डेट बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी रिस्क कम होगी, तो इसका एवरेज, तो कॉस्ट का एवरेज तो हुआ WACC। अब रिस्क का भी एवरेज करते हैं। रिस्क
ये जो रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा लाना, डेट से पैसा लाने में जो रिस्क है, राइट, टू मेजर द फाइनेंशियल रिस्क, comma we use financial leverage. वो लीवरेज टॉपिक पढ़ा था ना, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क. तो फाइनेंसिंग डिसीजन की जो रिस्क है, कौन से डिसीजन की, फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने कितनी रिस्क ली, वो रिस्क को मेजर करने का तरीका है. टू मेजर द फाइनेंशियल रिस्क वी यूज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज. और यहां जो मैंने बिजनेस डिसीजन लिया, बिजनेस भी करना रिस्की है, ये तो फाइनेंशियल रिस्क हो गई. बोरो किया तो रिस्क आएगी, हाँ, ये बोरो नहीं किया तो रिस्क नहीं है. अब मैं बिजनेस रिस्क की बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो भी तो रिस्की है ना, वो रिस्क को भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट. सो टू मेजर ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ बिजनेस, comma we use operating leverage. ये दो अलग अलग रिस्क हैं दोस्तों. एक रिस्क किस बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे रिलेटेड है, और दूसरी रिस्क वो बिजनेस में इन्वेस्ट जो किया वो पैसा कहां से आया उसके रिस्क है. तो इस रिस्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, और इस रिस्क को बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क. द टू डिफरेंट रिस्क. सीए करना, ये कोर्स, ये प्रोजेक्ट करना, इसकी जो रिस्क है वो ऑपरेटिंग रिस्क है. लेकिन सीए करने के लिए पैसे नहीं थे और आपने एजुकेशन लोन लिया, तो जो रिस्क ली वो है फाइनेंशियल रिस्क. ये दो में फर्क समझा आपको. तो बिजनेस किया तो ये रिस्क तो आई गई, लेकिन वो बिजनेस को फाइनेंस यदि लोन से किया तो ये रिस्क और ले लिया आपने, कौन सी, फाइनेंशियल रिस्क. तो ये रिस्क मेजर करने के लिए दो लीवरेज, और ये रिस्क को मिनिमाइज करना कभी भी ऑब्जेक्टिव रहेगा. Objective is always minimization of risk. So you will always try to minimize the risk here also, and you will try to minimize the risk here also. तो objectives देखो कैसे कैसे, maximization of ROI with minimum risk. Naturally बिजनेस में रिटर्न तो ज्यादा चाहिए, रिस्क कम से कम चाहिए. फाइनेंसिंग में भी रिस्क कम से कम चाहिए और कॉस्ट भी कम से कम चाहिए. दोस्तों जो मैं लिख रहा हूं ये कॉन्ट्राडिक्शन लिख रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है जितना लिख दिया मैंने. जैसे एक एग्जांपल, एफएम का एक फंडामेंटल रूल जो कभी भी यहां रखना, फंडामेंटल रूल, एंड दैट रूल इज रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. क्या रूल बोला मैंने, फंडामेंटल रूल एफएम, थ्रू आउट एफएम सब्जेक्ट, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. वो हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. इसका मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स. ये फंडामेंटल रूल है. और दोस्तों ये रूल एफएम का नहीं, पूरे लाइफ का भी है. बीकॉम रिस्क कम रिटर्न कम, सैलरी कम. सीए रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा. ये बेसिक फंडामेंटल रूल है लाइफ का. नेशनलाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट किए, नो रिस्क, नेशनलाइज बैंक, रिटर्न 6-7% बस. शेयर मार्केट में पैसे लगाए, डबल भी हो सकते, आधे भी हो सकते, इवेपोरेट भी हो सकते. ये क्या है, रिस्क. डबल हो सकते, ये रिटर्न. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो ये फंडामेंटल रूल है. अब ये क्यों बोल गया मैं, तो जरा ध्यान देना. रिस्क एंड रिटर्न को हैंड इन हैंड. आपको रिटर्न मैक्सिमम होना, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क भी मैक्सिमम होगी ना, लेकिन रिस्क मिनिमम होना. ये काम आसान नहीं है, और इस काम के लिए फाइनेंस मैनेजर लगता है. अब बात समझ में आई. यानी मुझे रिटर्न तो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन रिस्क भी कंट्रोल करके चलना है. ऑर्डिनरीली क्या होगा, रिटर्न बढ़ेंगे तो रिस्क बढ़ेगी, ये तो फंडामेंटल रूल है. लेकिन आपको उल्टा करना है, आपको रिस्क कम करके रिटर्न ज्यादा जनरेट करना है. तब दिमाग लगेगा, तब दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी, कुछ टेक्निक्स लगेगी जो एफएम में सीखने को मिलेगी आपको. और इधर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये भी समझ लो, उस टॉपिक में ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे. क्या बोल गया मैं, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप अभी मानो या ना मानो, मैं उस टॉपिक में आपको मनवाऊंगा। कौन से? कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में, क्योंकि अभी यदि डिस्कस करने जाऊंगा उसके लॉजिक्स और रीजन तो मैं इस टॉपिक में एंटर हो जाऊंगा, इसलिए मैं अभी ले जा नहीं रहा हूं। अभी आपने मेरी बात को सिर्फ मान लेना है। जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि डेट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम रहती है। क्यों रहती है वो पढ़ेंगे, कम रहती है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट है, तो मैंने डेट ज्यादा यूज करनी चाहिए। एक एग्जांपल, आप लोग होशियार हो, इधर ही ले लेता हूं, एक झलक आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसका नाम है, इस टॉपिक में हम उसका नाम रखने वाले KD, कॉस्ट ऑफ डेट। ये उसका नोटेशन है, C आना चाहिए ना इधर, हाँ, लेकिन ऐसे ही बुलाते, क्या बुलाते? KD। मैं क्या करूँ, उसको KD बुलाते, कॉस्ट ऑफ डेट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसको बुलाते KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये नोटेशन यूज होते हैं, वो इमटेरियल है। मैंने बोल दिया कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो समझो कॉस्ट ऑफ डेट है 8%, यानी यहां से पैसा लाए तो खर्चा लगेगा 8%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। एक काम करता हूँ, एक लॉजिक थोड़ा सा यहीं देता हूँ तो ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखता। अभी एक सेंटेंस बोला, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। अब आप आंसर देंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कॉस्ट इससे कम क्यों है। अभी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा एज ए डिबेंचर होल्डर, और आप लोग एज ए डिबेंचर होल्डर, और ये वाली साइड इन्वेस्ट कर रही है एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। आप दोनों इन्वेस्टर हो, आप कंपनी को यानी मुझे पैसा दे रहे हो थ्रू डिबेंचर्स, और आप दे रहे हो थ्रू इक्विटी शेयर्स। आप दोनों में से किसने रिस्क ज्यादा उठाई? इक्विटी वालों ने रिस्क ज्यादा उठाई, ये तो पता है ना आपको, इक्विटी वालों की रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें सबसे पहले इनका इंटरेस्ट पे करूंगा। सीक्वेंस, मेरे प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स पे होगा, उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स पे होगा, इनकम टैक्स, वो भी लिख दूंगा मैं यहां पर, अभी उसकी सीक्वेंस लिख दूंगा। देखो उसको बोलते प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मैंने कमाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से पहले क्या दूंगा मैं? इंटरेस्ट, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट का, उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा उसमें से शायद शेयर होल्डर को दूंगा। तो प्रॉफिट की सीक्वेंस वो भी यहां लिख देता हूं। चलो, जो ओरली बोला वो यहां पर। एफएम के लिए हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे, मैं नहीं डिस्कस करना था फिर भी ले गया आपको, हाँ इधर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रॉफिट स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। बाद में ये भी आप बाद में लिख लेना, सेल्स या रेवेन्यू, राइट। इसमें से समझो लेस, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए लगने वाला जो भी खर्चा, सैलरी तो डेप्रिसिएशन तो इलेक्ट्रिसिटी तो रेट, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो ये माइनस करता है। ये माइनस करने के बाद आपको मिलता है देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आज जो भी पढ़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज यानी रोज ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वो कनेक्ट होते चला जाएगा। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, एज फार एज पॉसिबल लेक्चर मिस मत करना, एज फार एज पॉसिबल, अनलेस देयर इज एन एब्सोल्यूट इमरजेंसी। क्योंकि मैं आज जो पढ़ा रहा हूं उसके बेसिस पे कल पढ़ाऊंगा, कल के बेसिस पे परसों पढ़ाऊंगा, और बीच में की लिंक मिस हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐसे लिखते हैं, ये जो मैं समझा रहा हूं बहुत काम की चीज, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि वर्ड ऐसे यूज होता है एफएम में, पूरा बोलते नहीं, EBIT बोलते सिर्फ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप लिखेंगे तो लगे तो फुल फॉर्म लिख लेना जब भी लिखेंगे। क्या बोला, फिर से रिपीट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुछ किताब में PBIT मिलेगा,
दोनों का मतलब एक ही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से पहला नंबर ईबीआईटी में से किसको पे करते हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट। आपने जो बोरो किया है ना, ये इंटरेस्ट इसमें से पहले जाएगा, यानी ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट पे होगा। इंटरेस्ट पे होने के बाद आपके पास बचेगा देयरफॉर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट गया उसमें से, तो ईबीआईटी में से आई माइनस हो गया, क्या बचा? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से जाएगा लेस टैक्स, टैक्स है ना इनकम टैक्स, है बोलते समय हम सिर्फ टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स है ना कॉर्पोरेट टैक्स। और मैं जब भी टैक्स निकालूंगा आप लोगों को स्लैब रेट मत लगाना, हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने इनकम टैक्स में स्लैब पढ़ा है, वो 2.5-3 लाख तक क्या एग्जाम, फिर 10%, फिर 20% एटीसी के डिडक्शन, वो सब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। हम सब कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी में स्ट्रेट टैक्स लगेगा, हाँ 30% टैक्स। तो हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ जब भी वर्ड टैक्स लिखेंगे सिर्फ, वो कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। जितना प्रॉफिट हुआ स्ट्रेट 30%, या क्वेश्चन में 35-40 दिया रहे तो जो रहे वो ले लेने का, वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लेने का, क्वेश्चन में लिखा है जितना टैक्स ले लेने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का, हाँ। लेकिन स्ट्रेट टैक्स, तो ये इनकम टैक्स जाएगा। इसके बाद बचता है देयरफॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट में से आप शेयर होल्डर को देते हैं, शेयर होल्डर को जो हिस्सा मिलेगा वो इसमें से, वो भी आपको ये तो पता होगा अकाउंट्स के नॉलेज से कि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा? उनको प्रेफरेंस मिलता है ओवर इक्विटी, तो उनको पहले, इक्विटी को बाद में। तो इसमें से जाएगा लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यू विल गेट देयरफॉर अर्निंग available for equity shareholders, इसमें से जाएगा लेस इक्विटी डिविडेंड, बराबर। और शायद ये कितना देना, इस टॉपिक की बात कर चुके हम, डिविडेंड डिसीजन ना, कि अर्निंग में से कितना देना उसका भी एक डिसीजन लेना है। और इसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं हम देयरफॉर रिटेन्ड अर्निंग्स। आप जो रिजर्व्स में लिखते हैं ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज रिजर्व्स, राइट। हमको एफएम में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे लगेगी, एफएम में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे लगेगी। ये आपको देता हूं मौका लिखने का, क्योंकि बार बार इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज और क्या हो सकता है, यदि थोड़ा सा अकाउंट्स का टच दे दो तो सेल्स में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ा सा फर्क हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सीओजीएस भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, और आपने इसको स्प्लिट किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 2 पार्ट की, एक सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं वो और जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं वो। तो एक स्टेप और बढ़ सकती है, क्या हो सकती है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ट्रेडिंग अकाउंट, तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से पीएनएल के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद आ गया ईबीआईटी, बस। एंड देन बाकी सब ऐसा कैसा, लेकिन वो ट्रेडर के लिए रहेगा भाई, ट्रेडिंग कंसर्न रही तो रहेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रही तो फिर कैसे करेंगे आप? तो ये फॉर्मेट जनरली चलता है। अब हमारी काम की बात पे आते हैं, मैं इधर था एक्चुअली। आप लोगों ने मुझे डिबेंचर होल्डर्स के फॉर्म में पैसा दिया कंपनी को, और आपने मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप डिबेंचर होल्डर्स। तो हमने क्या बोला, किसकी रेस ज़्यादा है? इक्विटी वालों की। क्यों? उनका नंबर पीछे है, प्रॉफिट में से इनको बाद में मिलेगा, लाइन में सबसे पीछे है, इक्विटी वाले सबसे पीछे की लाइन में खड़े। भाई बचेगा तो तेरे तरफ आऊंगा मैं, और वो भी बचेगा तो कितना देना वो मैं डिसाइड करूंगा। क्यों? डिविडेंड कितना देना, पूरा दूंगा नहीं दूंगा मेरी मर्जी है। और सबसे पहले इनको मिलेगा, कहां पर मिल गया इनको? ये इधर ही मिल गया, बहुत पहले ही मिल गया, गवर्नमेंट का शेयर जाने के पहले आपको मिला है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी बाद में है, तो शायद आपकी रिस्क बहुत कम है।
क्योंकि बांटते बांटते पैसे खत्म हो जाएंगे तो इन तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे गारंटी नहीं है, तुमको पहले मिलेंगे। अब ये इसलिए बोला, आपकी रिस्क कम है तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे कम होनी चाहिए, और आपकी रिस्क ज़्यादा है तो आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए। बात को समझना, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। You are taking lower risk on your investment, so you should expect from me lower return. You are taking more risk by investing in me, so you should expect more return. Like if you are doing BCom, you should expect low salary. If you are doing CA, you should expect more salary. क्यों? More the risk, more should be the return. अब point पे आ रहा हूँ मैं। Your expectation from me means from company. Your expectation from me is the cost of capital for me. एक बार और, मैंने आपसे पैसे लिए, उसके बदले में मुझे कुछ देना है ना, वो पैसे यूज करने के बदले में मैं जो देता हूं शायद उसको मैं क्या बुलाता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपसे जो पैसे लिए उसके बदले में आपको जो रिटर्न दूंगा वो कॉस्ट ऑफ डेट हुआ, मेरे लिए कॉस्ट हुआ, आपके लिए तो इनकम हुआ। और आपसे जो पैसे लिए उसके बदले में आपको जो दूंगा मैं, वो मेरे लिए क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपने रिस्क ज्यादा उठाई तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है यानी मेरी कॉस्ट ज्यादा है, और आपने रिस्क कम उठाई है तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे कम है, इसलिए मुझे कॉस्ट ऑफ डेट कम है। क्वेश्चन दोस्तों, ये टॉपिक मैं इधर बोलने वाला था बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैंने अब 20 बताया। Logic behind why cost of debt is lower than cost of equity. कुछ बात समझ में आई? It will always be lower. Cost of debt will always be lower than cost of equity. क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन इनसे कम ही रहेगी, क्योंकि इनकी रिस्क कम है, आपकी रिस्क ज्यादा है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आगे की बात पे चलते हैं। ये तो पूरा इस लॉजिक के लिए किया। अब मैंने समझो डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन लेता हूं, डेट इक्विटी मिक्स बोलते हैं हम इसको। हाँ, डेट इक्विटी मिक्स यानी डेट 20% और इक्विटी 80%। ये टॉपिक हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, समझ लो, मैं देता हूं मौका लिखने का। 20% डेट, 80% इक्विटी। अब मुझे निकालना है WACC, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट की कॉस्ट कितनी है, 8%, लेकिन इसका वेटेज कितना है, 20%। 20% को 0.2 लिख सकते हैं। मेरे पैसे में 20% वेटेज किसका है, डेट का, तो डेट की कॉस्ट इंटू उसका वेटेज, वेटेड एवरेज के लिए, प्लस इक्विटी की कॉस्ट 12% इंटू उसका वेटेज 0.8, तो ये 8% इंटू 0.2 1.6%, नहीं तो कैलकुलेटर चला लेना। 0.8 इंटू 12 9.6%, दोनों की टोटल 11.2%। ये समझा क्या किया? इतना मैथ्स लगेगा? हाँ, इतना कंफर्टेबल है ना? अब एक ये दो, अब ध्यान देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ WACC। गेट इन्वॉल्व इनटू द सब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ WACC। मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट को कम करना हो तो मैंने ये डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? एक बार और, मैं टेक्निकल मैटर पे हूँ, एक बार फिर। मेरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ WACC, यानी ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखा, ये मुझे कम करना है। ये कम करने के लिए ये जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है, उसमें डेट का प्रोपोर्शन ये वाला बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? वेरी गुड, बढ़ाना चाहिए। अरे भाई ये सस्ता है, आप सस्ते वाले कॉस्ट वाले फंड को यदि बढ़ाएंगे, सस्ता वाला फंड बढ़ेगा तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। तो मैं भी इसका डेट इक्विटी मिक्स चेंज कर रहा हूं, डेट 50% एंड इक्विटी 50%, ऐसा मिक्स बनाया मैंने। यानी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया और इक्विटी का प्रोपोर्शन कम किया,
तो WACC क्या आएगा? WACC ये 8% इंटू 0.5 प्लस 12% इंटू 0.5, तो ये हुआ 4% प्लस 6%, ये 10% हुआ, ये 11.2 से कम हुआ। सिंपल सी तो बात है, आपको दूध और पानी मिलाना है, दूध वाला मिलाता है ना, लेकिन उसको एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट मिल्क कम करना है, तो उसने किसका प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए? दूध का या पानी का? पानी का, क्योंकि पानी सस्ता है, तो पानी ज्यादा डालेंगे तो कॉस्ट पर लीटर कम होगी, तो ये सस्ता है इसको ज्यादा डालो तो एवरेज कॉस्ट कम होगी। सिंपल लॉजिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव WACC को मिनिमम करना है, और WACC मिनिमम होगा डेट प्रोपोर्शन बढ़ा के, लेकिन डेट का प्रोपोर्शन यदि मैं बढ़ाऊंगा, कंपनी बढ़ाएगी, तो मेरी रिस्क बढ़ेगी क्या कम होगी? अरे डेट लेने से क्या होगा? रिस्क बढ़ेगी, तो मेरी फाइनेंशियल रिस्क जो है, यानी फाइनेंशियल रिस्क यानी फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, लेकिन मुझे शायद रिस्क कम करना है, तो मैं फिर से अपोजिट बात कर रहा हूं। समझो क्या बोल रहा हूं मैं आपके सामने, सिचुएशन रख रहा हूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्टिव से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। WACC कम करना हो तो डेट बढ़ाओ, ये इधर समझाया, डेट बढ़ाऊंगा तो रिस्क बढ़ेगी, लेकिन नहीं, रिस्क बढ़ाना नहीं है, रिस्क कम करना है। अरे तभी तो फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि डेट बढ़ने से रिस्क बढ़ती है, लेकिन मुझे डेट बढ़ा के इसको कम करना है, लेकिन इसको भी कम करना है, इसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि रिस्क को भी कम करना है। तो ये अपोजिट काम करने के लिए बोल रहे हो, और ये काम के लिए स्किल लगता है। जैसे कोई बोले मुझे CA बनना है लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, रास्ता बता, तो बोलना भैया ये डिफिकल्ट काम है, राइट? CA तो बनना है लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, तो डिफिकल्ट काम है। तो ऐसे अपोजिट बात कर रहे हैं हम, WACC कम करेंगे तो डेट बढ़ेगी, और डेट बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगी, लेकिन आपको रिस्क कम करना है। सो ट्राइंग टू पुल देम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये चार्ट को धीरे से क्लोज करता हूं मैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन माने जाते हैं FM के, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, और इसके ऑब्जेक्टिव बताया आपको मैंने इंडिविजुअल विंग के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ ROI, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। फाइनेंसिंग विंग का ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ WACC एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। और एक डिसीजन और ऐड हो गया उसमें, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन वो हम डिविडेंड डिसीजन के नाम से टॉपिक में पढ़ेंगे, पॉलिसी की कितना शेयर होल्डर्स में बांटना या नहीं। और ये 3 डिसीजन का अल्टीमेट रिजल्ट यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ FM, द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ FM is maximization of shareholders wealth। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव FM का क्या माना जाता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसी को हम बोलते हैं दैट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब एक ही है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन यानी शेयर की जो वैल्यू है ना, इक्विटी शेयर की वैल्यू मार्केट में, वो वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। इक्विटी शेयर की जो मार्केट में कीमत है वो वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना। अब ये दोनों एक कैसे हुए तो ध्यान देना। आप लोगों ने मेरे कंपनी के 100 शेयर खरीदे इक्विटी के, जब खरीदे तब 20 रुपया पर शेयर कीमत थी, आपने 20 रुपए दिए मुझे खरीदते समय, लेकिन मैंने कंपनी इस तरीके से चलाई, ये सब मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से किया कि शेयर की कीमत बढ़ के 20 रुपए से 20 रुपए में आपने खरीदे हैं, वो शेयर की कीमत बढ़ के, और 100 शेयर खरीदे आपने, ऐसा समझो हर एक ने 100, वो बढ़ के 200 रुपए हो गई, बाद में 2000 रुपए हो गई, बाद में 20,000 रुपए हो गई एक शेयर की कीमत, और आपने 100 ही शेयर खरीदे, तो शायद आपकी वेल्थ कितनी होगी? अभी आपके पास जो एक शेयर है उसकी कीमत 20,000 रुपए, तो 20,000 इंटू 100, आपकी शायद वेल्थ बढ़ते जा रही है। तो मैं शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज करूंगा, उससे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन एंड द सेम।
एंड दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब एक सेंटेंस और बोलता हूं, फिर ये लिखना है आपने. कैन आई से दिस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सेम? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलना और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलना एक ही हुआ ना? नहीं हुआ दोस्तों. यहां सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये वाला सिर्फ ये. लेकिन जब आप सभी चीज देखते हो, ये रिस्क मिनिमम, डिविडेंड डिसीजन, ये सब मिला के जब कंबाइंड इंपैक्ट आता है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. इसलिए एफएम में कहा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं एफएम में. क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन ऑफ द कंपनी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ले चलूं आपको, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कॉस्टिंग में दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है टॉपिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये एक स्टेप ऊपर है, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूडेड है, उसके साथ और भी चीजें हैं, वो सब मिला के जब कंबाइंड इफेक्ट आता है देन इट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है आपको. WACC थोड़ा सा लिखना हो. WACC में क्या समझना है? डेट का प्रोपोर्शन. पहली बात तो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से WACC कम होता है और प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐसी होती है. ये भी काम किए, हर बार स्टेटमेंट ऐसी बनेगी. सो आई गिव यू सम टाइम, प्लीज राइट इट डाउन.
चलो फिनिश्ड. ये वाला पार्ट हो गया क्या लिख के? इसमें एक ऑब्जर्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं आप. इसमें कहीं एक आध लाइन, इंक्रीज इन डेट proportion leads to decrease in WACC, but it leads to increase in financial risk. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. ये जो आपने प्रोग्राम लिखा उससे क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है. यानी ये मल्टीप्लाई करके आंसर आया, इस पर कभी इंपॉर्टेंस मत देना. सब्जेक्ट को समझना तो उसके रिपरकेशंस क्या है. इंक्रीज इन डेट प्रोपोर्शन का मतलब 20% से मैंने प्रोपोर्शन 50% किया, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया. समझे? उससे क्या हुआ? डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से ये WACC 11.2 से 10 हुआ, तो WACC कम हुआ. लेकिन डेट बढ़ने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ी. मैं आगे उसको लीवरेज से कनेक्ट करूंगा. वो रिस्क कौन मेजर करता है? लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा. ये सब एक से एक कनेक्टेड बोगीज है. आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, देखते होंगे बोगीज इंटर कनेक्टेड रहती है ना, वैसा है ये. पूरे टॉपिक एक से एक कनेक्ट होंगे. मैंने आज पहले दिन ही तो कर दिए सब टॉपिक कनेक्ट आपके. और वो जो नोटेशन है वो भी काम आएंगे. वो सब लिख लेना पूरा, कुछ भी मत छोड़ना, सब इंपॉर्टेंट है. डोंट हेजिटेट एंड डोंट शाय. आई एम गिविंग यू टाइम. वो सब वर्ड, वो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, उसके नोटेशन यूज होंगे, EBIT और ये सब. ये रोज रोज लगने वाली चीजें है. चलो लेट्स गो अहेड नाउ.
एक्चुअली टॉपिक 1 है ये, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। और आपकी एडमिशन हो जाए तो अपनी अपनी प्रिंटेड कॉपी कलेक्ट कर लेना, तो आपको पढ़ने के भी काम में आएगा। और दूसरा, जनरल इंस्ट्रक्शन में मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं लिखूँगा ऐसे ही, तो जनरली आई विल बी स्टैंडिंग ऑन दिस साइड एंड राइटिंग ऑन दिस साइड। इसका मतलब आई मे ऑब्स्ट्रक्ट सम ऑफ यू हियर दिस साइड, तो you have to adjust your position accordingly. You can shift to this side from tomorrow onwards, more on this side, or in such a manner that I am not obstructing you, right? Because I don't write like this, so I will be majoritarily standing on this side and writing on this side. अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको शेयर मार्केट पे। यहाँ से शेयर मार्केट कनेक्ट होगा, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बोला, यानी शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। शेयर की वैल्यू मार्केट में डिपेंड करती है, शेयर मार्केट में वो मैक्सिमाइज करना है तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम होगी। और मैं भी आपको बोल गया 20 रुपये में शेयर खरीदा, 200 रुपये हो गया, 2000 हो गया, 20,000 हो गया, आप बोल रहे होंगे क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? होता है। रिसेंट में एग्जांपल दूं तो वो बुलेट गाड़ी पता है ना, रॉयल एनफील्ड बुलेट, उस कंपनी का नाम पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी। आइशर मोटर्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, शेयर्स ट्रेडिंग होते हैं। और वो ब्रांड नेम उनका रॉयल एनफील्ड बुलेट। ये स्टोरी आपने कहीं और भी सुनी होगी और वो सच है। आज से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले ये बुलेट जितने में मिलती थी, वो गाड़ी जितने में खरीदते लोग, वो गाड़ी में इन्वेस्ट करने की जगह उस कंपनी के उतने वैल्यू के शेयर्स लिए रहते हैं। एक एग्जांपल के लिए समझो 50,000 में गाड़ी आ रही थी वो, ऐसे समझो, वैसे 50,000 में नहीं आती, बहुत महंगी आती है वो, लेकिन आज से 10-15 साल पहले समझो 50-60 हज़ार की जो भी गाड़ी आती थी तब, या 1 लाख रुपए में आती थी, तो 1 लाख रुपए की बुलेट खरीदने की जगह 1 लाख रुपए के आइशर मोटर्स के यदि आज शेयर खरीद लेते आप और वो शेयर्स आप सिर्फ रख लेते आपके पास, तो आज आप मर्सिडीज खरीद सकते थे। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, आज आप मर्सिडीज खरीद या BMW खरीद लेते थे उतने पैसे जिसमें आपने बुलेट खरीदी 10-15 साल पहले। तो बुलेट में इन्वेस्ट करने की जगह बुलेट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते तो आज मर्सिडीज खरीद लेते, BMW खरीद लेते। ये फैक्ट है, कुछ भी झूठ नहीं, बिकॉज दैट कंपनी हैज परफॉर्म वेरी वेल। 1990 में जब इन्फोसिस का पब्लिक इशू आया था, इन्फोसिस पता है सभी को, इन्फोसिस का पब्लिक इशू आया था, उस समय किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते। कितने? 10,000। तो आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए का मालिक होता। इसमें भी कुछ भी झूठ नहीं बोला मैंने, यानी आप ये मत समझना मैं फेंक रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। हाँ, कोई फालतू कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते तो 10,000 रुपए के जीरो भी हो गए रहते थे। शेयर मार्केट की खासियत है, वो पैसे इवेपोरेट भी होते, लेकिन इतने टाइम मल्टीप्लाई होने की जगह भी एक ही है। बट इफ यू हिट द बुल्स आई, इफ यू हिट द राइट कंपनी, हर कंपनी के नहीं होते हैं, हम जो एग्जांपल दे रहे हैं सक्सेसफुल कंपनी के दे रहे हैं आपको, इसमें भी कुछ भी झूठ नहीं बोला। 10,000 रुपए 1990 के आज कितने के मालिक होते हैं आप? 3 करोड़। ये क्या हुआ? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ हुआ। उसके 10,000 रुपए की कीमत आपने 3 करोड़ पे पहुंचा दी शेयर होल्डर की। दिस इज द होल मैनेजमेंट, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट which ultimately leads to maximization of shareholders wealth. That is what I am talking about. Are you getting my point? So that is the efficient management of company, right? और कंपनी इतने से चालू हुई, पब्लिक इशू करीबन 1990 के आसपास आया था। और ये सब स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, यानी जैसे मैंने आपको झूठ बोल दिया, फेंक दिया, तो आप जाके सर्च करके गूगल पे ढूंढ के निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ढूंढ के निकालना बहुत छोटी सी बात है। मैंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता दिया आपको, लेकिन ऐसा हुआ है। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, अभी हटा रहा हूं, बहुत देर हो गई, आपने लिख लिया होगा सब। किसी भी कंपनी की मार्केट में टोटल वैल्यू कितनी है? किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट में कितनी है? यानी आप उस कंपनी को पूरा खरीदना चाहो 100%, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उस चीज का शेयर मार्केट में एक नाम है जो इस टॉपिक से कनेक्ट होता है, इसलिए लिख रहा हूं मैं। उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे कनेक्ट है ना वो।
Market capitalization means total value of a company. Total value of a company. That is called market capitalization. ये वर्ड शेयर मार्केट का है, हाँ? और ये कैसे निकलेगी? टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है ना, 1 शेयर. हाँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. तो शेयर मार्केट में न्यूज़पेपर में रोज ही पता चलता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की. तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड. ध्यान में आया? बहुत सिंपल फॉर्मूला है. किसी कंपनी ने टोटल मार्केट में कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए समझो? 1 लाख. टोटल मार्केट में कितने शेयर्स उनके? 1 लाख एग्जाम्पल. और एक शेयर की कीमत मार्केट में चल रही है 50 रुपीज, राइट. ये वैल्यू ऑफ की जगह वैल्यू पर इक्विटी शेयर लिख देता, तो ये 1 नहीं लिखना पड़ेगा मुझे. वैल्यू पर इक्विटी शेयर. एक शेयर की कीमत 50 रुपीज और 1 लाख शेयर्स है, तो पूरे कंपनी की कीमत कितनी होगी? 50 रुपीज में एक शेयर बिक रहा है और इसे 1 लाख, तो 50 लाख हुई ना. यानी आप 50 लाख रुपीज आपके जेब में हो तो आप कंपनी के पूरे शेयर्स खरीद सकते हैं, और पूरे शेयर्स खरीद लिए तो आप क्या हो गए? कंपनी के मालिक. तो इसको बोलते हैं कंपनी की वैल्यू, और इस कंपनी की वैल्यू का टेक्निकल नाम क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन. और ये मैक्सिमाइज करना या नहीं है, तो जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन. सिर्फ ये लैंग्वेज शेयर मार्केट की है, ये लैंग्वेज एफएम की है, दोनों का मतलब एक ही है. ये कहीं लिख लो, फिर मैं आपको अभी के लाइव एग्जांपल देता हूं अलग अलग कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसी से कनेक्टेड है ये. मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी means total value of a company, यानी वैल्यू पर इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड. राइट. अब आप में से कुछ बोल सकते हैं सर हमको तो एक सेविंग अकाउंट ऑपरेट करना नहीं आता है, हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं, और आप क्या करने लगा रहे हैं हमको? यानी आपको उसमें इन्वॉल्व होना है. जिसको एक बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं है या ऑपरेट करना नहीं आता है, चेक आज तक कभी इशू नहीं किया किसी का और डिपॉजिट नहीं किया, और वो स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट क्या चाहती है समझाना कि तू पूरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैक्सिमम कर. कैसे? वो एफएम में लिखा है. तो हम कहाँ है और एक्सपेक्टेशन कहाँ है इंस्टीट्यूट की, किस लेवल से किस लेवल तक जाना है आपको, ये सोच लेना. राइट. तो इसके लिए आपको डे टू डे फाइनेंस में बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. जिसके पेरेंट्स बिजनेसमैन है, आपने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है, थोड़ा, तो आपको उसमें से सीखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट का. जिनके पेरेंट्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने पास सिलेबस बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए. लेकिन इससे चीज़ से भागना नहीं है, इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना है. तो आपको ये सब डे टू डे की काम की चीज़ है, ये सब मिलेगी आपको सीखने को, ये वर्ड मिलेंगे आपको सीखने को. आपको शेयर के भाव पता रहेंगे यदि आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते होंगे तो. अब इंडिया में 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कितनी कंपनी बताता हूं? मैंने क्या बोला? 1 लाख करोड़. मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल गया क्या चीज है आपको? ये 1 लाख हुआ और करोड़, यानी इसके ऊपर 7 zeros, इसके ऊपर 7 zeros. हाँ, और 1 लाख करोड़ के ऊपर, आई होप यू आर गेटिंग. 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी इंडिया में है, इंडियन शेयर मार्केट में, जिनका मार्केट वैल्यू, जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ और उससे ऊपर, ऐसी 30 कंपनीज है इंडिया में.
एक दो नहीं, 30 कंपनीज। अच्छा, मैं कहाँ से फेंक रहा हूँ? फेंक नहीं रहा हूँ, फेंकता नहीं मैं। अरे एक वो जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आते हैं ना, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें लिस्ट आती है, रोज की आती है, रोज आती है, क्योंकि रोज ये वैल्यू चेंज होती रहती है, शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो रोज वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम ज्यादा होता रहता है, तो रोज रैंकिंग आती है 1 2 3 4 5 6। मैं आने के पहले इसलिए जस्ट एक नजर मार के आया उस पेपर पे कि कितनी कंपनीज 1 लाख करोड़ के ऊपर वाली। 30 कंपनीज आर हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। This is the market strength. And who will be on the top at present? Anybody can guess? Who is on the top? नंबर 1 पे कौन चल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन? उससे नंबर 1 2 गिनते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नंबर 1 पे कौन चल रहा है? वेरी गुड, आपने दो नाम मेरे से सुने हैं आपके मुंह से, एक रिलायंस और एक टीसीएस। वेरी गुड, आपने नंबर 1 और 2 बता दिए मुझे, और ये अभी अभी 1 वाला 2 पे चला गया और 2 वाला 1 पे अभी अभी गया है कुछ महीने पहले। फिलहाल नंबर 1 पे चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,60,000 करोड़ के ऊपर है, 5,60,000 करोड़। और नंबर 2 पे चल रहा है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो करीबन 5 लाख, ये राउंड फिगर दे रहा हूं आपको मैं, ये फिगर रोज ही चेंज होती है इसलिए बता के कोई फायदा नहीं है। 5,20,000 करोड़, 5 लाख करोड़ के ऊपर वाली दो कंपनी है, 5 लाख करोड़, फिर बाकी नीचे है 4 लाख वगैरह। मेरे ख्याल से नंबर 3 पे एचडीएफसी बैंक आ गया है, कुछ 4,60,80,000 करोड़ के आसपास एचडीएफसी बैंक भी चल रहा है, बैंक। हाँ, ये कंपनी है। टीसीएस वाज नंबर 1 फॉर सो मेनी इयर्स। अभी इन रिसेंट फ्यू मंथ्स, ये लास्ट 3-4 महीने में रिलायंस वाज एट नंबर 2, इट रेस्ड अहेड एंड वेंट टू नंबर 1 इन लास्ट फ्यू मंथ्स ओनली, इन रैंकिंग हैज चेंज्ड। टीसीएस वाज नंबर 1, रिलायंस वाज नंबर 2, वो चेंज हो गया। कुछ नहीं, रिलायंस ने पहले फुकट में दिया ना आपको जियो यूज करने को, पहले तो आदत लगाई आपकी, और बाद में तो फिर पैसे तो लेने ही है ना, पैसे कब तक नहीं लेंगे, बिजनेस है उनका। पहले आदतें खराब करो, और खराब होने का बाद बोलना आप दे पैसे। अब खराब हो गई आदत, पीछे तो नहीं जाएगी ना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस मॉडल है, प्लस उनका ऑयल रिफाइनरी का बड़ा बिजनेस है। तो ये नंबर 1 पे 2 पे कभी भी चेंज हो जाता है, ये कभी भी चेंज होता है। यानी 10-20 हजार करोड़ रुपए तो वैल्यू ऐसी चेंज होती है एक दिन में। यानी आज वैल्यू देखो और कल के न्यूज़पेपर में देखो तो 10-20 हजार करोड़ रुपए चेंज होना तो बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन यहाँ जाता है। दिस इज व्हाट इट इज। इसलिए मैंने उसको शेयर मार्केट से थोड़ा सा कनेक्ट किया समझाने के लिए। इसके अलावा जनरल में और कुछ पूछना है? ये फर्स्ट चैप्टर था अपना, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। कोई ऐसा जनरल वर्ड जो आपके दिमाग में हो, जब तक अटेंडेंस शीट फिलअप कर देना। हाँ, कैन फिल अप द अटेंडेंस शीट एवरीवन। कुछ ऐसा जनरल वर्ड सुना लेकिन पता नहीं, उसका मीनिंग नहीं पता, ऐसा कुछ, क्योंकि फिर हमको रेशियो एनालिसिस चालू करना है। और वो प्रिंटेड नोट्स लगेगी ना रेशियो एनालिसिस में, रेशियोज, उसके फॉर्मूले हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, वो सब लगेगा। कुछ नहीं पूछना तो आज ही चालू कर देते, तो टाइम कम है अपने पास। आप सब सोच में पड़ गए क्या पूछे, है ना? कोई टॉपिक कहाँ ले जा रहा है आपको? मैं ही कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ। चलो, इससे रिलेटेड बातें करूंगा तो एफएम से रिलेटेड है ना, फालतू फालतू बातें करने की मुझे आदत नहीं। इसको हटा दो। ये बहुत अच्छे से ये 3, हाँ, जो ऑब्जेक्टिव्स में या डिसीजंस में एफएम में बहुत सारे लेने पड़ते हैं। 3 आर कॉल्ड मेजर डिसीजंस विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। उसमें दीज 2 आर मच मोर इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले हम यही 2 पढ़ाते थे, लेकिन तीसरा भी ऐड कर दिया, डिविडेंड डिसीजन। उनका कहना है ये 3 डिसीजन का इधर रिपरकेशन आता है, यानी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज जो होती है वो ये 3 डिसीजन पे डिपेंडेंट है, ये समझना है। और वो डिसीजन कौन लेने वाला है? फाइनेंस मैनेजर। यानी फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन पे, 3 टाइप के डिसीजन पे क्या डिपेंडेंट है? शेयर होल्डर्स की वैल्यू या वेल्थ। दिस इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। और शायद बहुत सारे टॉपिक भी यहाँ कनेक्ट कर दिए मैंने इसमें, राइट।
पहला टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं वो रेशियो एनालिसिस उठाएंगे, राइट। वो इसलिए कि पहले आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते आना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो हमको आता है, आप क्या सिखाएंगे, अकाउंट से पढ़ा हुआ है। वो आपने जिस तरीके से पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ना है, अब उसको रेशियोज के थ्रू पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू, यानी डॉक्टर के एंगल से देखना है उसको। आपको उसको किस एंगल से देखना है, डॉक्टर के एंगल से, एंड दैट टॉपिक इज अवर रेशियो एनालिसिस। उसको और एक इंस्टीट्यूट ने नाम दिया है, देखना जरा नोट्स में क्या है, मुझे उसको और एक नाम है, फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस कुछ नहीं, ये दो नाम से एक आता है फाइनेंशियल रेशियोज। बेसिकली हमको करना क्या है, यू हैव टू डू एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड में बहुत सारा मीनिंग है, एनालिसिस वर्ड में बहुत सारा मीनिंग है। एनालाइज करना यानी क्या करना, इवैल्यूएट करना, इज कॉल्ड एनालिसिस। जैसे 12th के बाद करियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे, पहले तो 10th के बाद मेन डिसीजन आता है कौन से विंग में जाना है। तो अब क्या करते हैं, अलग अलग इवैल्यूएशन को एनालाइज करते और उसमें से एक चूज करते हैं। फिर 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें से आपने एक ऑप्शन लिया सीए का। फिर सीए में आने के बाद बहुत सारी क्लासेस, उसमें से एक ऑप्शन लिया। तो ये हर स्टेज पे आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस, डिसीजन, राइट। और एनालिसिस करके डिसीजन लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करना है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करना है। और ये एनालिसिस करने के लिए जो टूल यूज होता है, उस टूल का नाम है रेशियो। एक्चुअली टूल का नाम है फाइनेंशियल रेशियोज। तो बहुत सारे लोग उसको रेशियो एनालिसिस बुलाते हैं, यानी डूइंग एनालिसिस। इस सेंटेंस का मतलब रेशियो एनालिसिस यानी डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। दिस इज व्हाट द टॉपिक इज, डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, और इसलिए वो नाम पड़ गया रेशियो एनालिसिस, राइट। यानी डूइंग द डायग्नोसिस ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और ये रेशियो वर्ड का मतलब, रेशियो इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं कल से। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड फिगर्स। रेशियो की जब बात करते हैं हम, तो रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे मेरे कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, ऐसा सेंटेंस बोलना। My company has earned a profit of 10 crores last year. This is one sentence I have made. This is also indicating some financial performance, that I have earned a profit of 10 crores. But this 10 crore is an absolute figure. It is not a ratio. Instead of that, if I say my company has earned 18% profit on sales last year. What did I say? 18% profit on sales last year. Then this sentence, when I say 18% of sales is my profit, this is ratio. तो मैंने क्या किया, पहले सिर्फ प्रॉफिट बोला था, अभी उस प्रॉफिट को किससे कनेक्ट किया, सेल्स से। सेल्स पे कितना प्रॉफिट है, 18% का मतलब मैथमेटिकली पता है आपको, फिर भी लिख रहा हूं, 18% का मतलब 18/100 होगा ना। यानी माय नेट प्रॉफिट इज 18 इफ सेल्स इज 100, सॉरी इफ सेल्स इज 100। तो मैंने प्रॉफिट को किससे रिलेट किया, सेल्स से, तो एक रेशियो आया। ये 18% का नाम रेशियो है, और सिर्फ 10 करोड़ प्रॉफिट का नाम रेशियो नहीं है। तो रेशियो के लिए कम से कम 2 फिगर होना जरूरी है, एक फिगर का दूसरे से रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेटेड फिगर्स होना, कोई भी 2 फिगर नहीं, उनका आपस में कुछ कनेक्शन होना। और अकाउंट्स में आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़े, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आरओआई लिखा था, वो क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे आप, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। यदि मैं बोल रहा हूं कि मेरा आरओआई 25% है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन आई से माय आरओआई इज 25% मींस मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उस पे 25% कमाया, ऐसा मतलब हुआ ना।
तो मैंने प्रॉफिट को किससे कोरिलेट किया है? इन्वेस्टमेंट से। तो उस रेशो का नाम हो गया आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ रेशो। मैंने प्रॉफिट को सेल्स से कंपेयर किया, रिलेशनशिप किसका लगाया? प्रॉफिट और सेल्स का। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो आपको पता ही है, वो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो है। ऐसे हम अलग अलग फिगर्स को कोरिलेट करके अलग अलग रेशोज निकालेंगे, अलग अलग रेशोज। अब अलग अलग रेशोज क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको फाइनेंशियल हेल्थ अलग अलग जगह की जज करना है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर आंखों का अलग, कान का नाक का अलग, हार्ट का अलग, ऐसे है ना, हड्डियों का अलग, सब अलग अलग डॉक्टर्स है ये। वैसे ही रेशो एनालिसिस नाम का जो टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है रेशोज, ये टूल बॉक्स है। इसमें बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे टूल्स में आपको कंपनी की सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जज करना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वाली हेल्थ कैसी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज नाम के रेशोज है सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के लिए। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जज करना है आपको। अब ये वर्ड नया है आपके लिए, कौन सी? लिक्विडिटी। वैसे आपका गेस वर्क, मुझे ये चेक करना है कंपनी की लिक्विडिटी ठीक है क्या। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना के लिए अलग टूल्स, रेशो में ही, हाँ रेशो में अलग टूल से प्रॉफिटेबिलिटी चेक होगी, अलग टूल से लिक्विडिटी चेक होगी, अलग टूल से कैपिटल स्ट्रक्चरिंग चेक होगा, ऐसे अलग अलग टूल्स है। तो लिक्विडिटी, पहले इसका मतलब थोड़ा सा बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। करंट असेट्स वर्ड आया एक, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, गुड। लिक्विडिटी यानी लिक्विड कैश और उससे रिलेटेड करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज बराबर है। देखो दोस्तों, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है समझो, इसका यह मतलब नहीं होता कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। कहने का मतलब भाई किसी का पैर ठीक है तो हाथ भी ठीक होगा, ये जरूरी नहीं, और हाथ ठीक होगा तो आंख भी ठीक होगी, ये जरूरी नहीं है। तो आपको अलग अलग टूल से अलग अलग चीज मेजर करना है। ध्यान रहे दोस्तों, हम प्रॉफिट निकालते समय एक्रूअल बेसिस पे निकालते हैं। एक्रूअल बेसिस पे निकालते हैं, कैश बेसिस पे निकालते हैं? एक्रूअल। तो कंपनी प्रॉफिट जरूर कमा रही होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं उसके पास कैश हो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल लेना, एक पर्सन ए है, बहुत वेल्दी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जेब में कैश ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में है, लैंड में है, शेयर्स में, वो अटक गए हैं पैसे सब। प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, यानी क्या नहीं है उसके पास? लिक्विडिटी नहीं है। तो ये अलग अलग हो सकता है, ये एक्सेप्ट करना है। यानी अ प्रॉफिटेबल कंपनी मे नॉट बी लिक्विड एंड अ लिक्विड कंपनी मे नॉट बी प्रॉफिटेबल, ऐसा हो सकता है। फिर कंपनी जो रिसोर्सेज यूज कर रही है, अलग अलग रिसोर्सेज हम यूज करते हैं बिजनेस में, वो रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली यूज करते हैं आप, हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इन बिजनेस, वो एफिशिएंसी को जज करने के लिए हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियोज। उनके नाम है टर्नओवर रेशियोज। नाम टर्नओवर रेशियोज है, लेकिन वो काय के लिए है? एफिशिएंसी ऑफ डूइंग द बिजनेस। अब बिजनेस कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं वो जज करने के लिए। फिर हमको पढ़ने हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका आपको। ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फिर हम कुछ एकदम कैश रेशियोज भी देखेंगे, कैश पोजीशन रेशियोज, कैश पोजीशन रेशियोज। इसमें सिर्फ कैश पोजीशन देखेंगे, यानी लिक्विडिटी का और एक हिस्सा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। क्या बोल गया मैं? कैश एंड बैंक बैलेंस, हार्ड कैश और बैंक बैलेंस जो आप चेक से ट्रांसफर कर सकते हैं, इज कॉल्ड मोस्ट लिक्विड एसेट। मोस्ट लिक्विड एसेट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज हुई। फिर किसका नंबर आएगा? इससे ज्यादा लिक्विड कोई नहीं। हाँ, कैश और बैंक बैलेंस इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। इसके बाद करंट असेट्स, बिकॉज करंट असेट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months, within a period of 12 months. करंट असेट की डेफिनेशन ही है द असेट विच इज लाइकली टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months। तो उसके बाद उसका नंबर है। और करंट असेट्स के आगे जाएगा फिर फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट के पैसे इतनी जल्दी नहीं मिलते, यानी जो असेट जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड ज्यादा, दैट इज मोर लिक्विड असेट। और खुद कैश तो मोस्ट लिक्विड,
मोस्ट लिक्विड एसेट। तो इससे हम लिक्विडिटी पोजीशन और कैश पोजीशन जज करते हैं। फिर आप जो पैसा लाए हो लोगों से बिजनेस चलाने के लिए, वो पैसा डेट से और इक्विटी से कितना कितना लाए, उसको जज करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक टॉपिक भी है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसको स्ट्रक्चरल रेशियोज बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चरल रेशियोज। उससे आपको आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलेगा, स्ट्रक्चरल रेशियोज। ऐसे ढेर सारे आपको रेशियोज पढ़ना है जिससे आपको फाइनेंशियल हेल्थ अलग अलग एरिया की पता चले। ठीक है, अब ये टॉपिक आज नहीं चालू करता, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दिया, कल इसमें डिटेल्स में हम जाएंगे रेशियो। आज यहाँ रुक जाते हैं।